recording. Okay, so this is the lecture number 3, unit number 3. Okay, and today's date is 8th May 2024. Are you getting my voice? Okay, and screen is clear. Okay, so we'll next move. So we are going to see the third important topic of this unit, LS coupling and two valence electron system. Okay, two valence electron atom. What is two valence electron atom? Means ऐसा एक atom जिसके outer most shell में दो electrons रहेंगे. Okay, two valence electron. तो ये दो valence electron, two electrons में coupling किस type की होती है? LS coupling, that we will see. So we'll see the LS coupling in two valence electron atom. So this topic is very important. Before going to this topic, we'll see some questions. Okay, questions related to this topic. Okay, before going to this topic, we'll see the question, and these questions were asked in the previous examination. So first question is explain LS coupling and in case of two electron system, and this question was asked for 8 marks and 6 marks in summer 16 and summer 23. Similar way, explain LS coupling in two valence electron atom with example for DP configuration. DP means d orbital and p orbital. D orbital means the one electron from d orbital and one electron from p orbital. So how they coupled, or how LS coupling occurred for these two electrons. One electron is present in d orbital and second electron is present in p orbital. So we will have to take this example and explain LS coupling in two valence electron atom. And third one is discuss the various stages through which LS coupling. It means the same question, we have to discuss the LS coupling in two electron atom. So all these three questions are of same type and all these questions have same answer. Okay, now we will see LS coupling in two valence electron atom. So इस टॉपिक के पहले जाने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये एटम है और ऐसा एटम लेना है जिसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इफ सपोज दिस रेड स्पेयर इज एन एटम एंड हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स. अगर मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग अलग रहेंगे. सपोज एक इलेक्ट्रॉन को हमने बोला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमने बोला सेकेंड इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ L1 स्टार बार और दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मैं कंसिडर कर रहा हूँ L2 स्टार बार. तो सपोज दिस L1 स्टार बार इज द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन and it will form a particular cone because it will precess around the resultant vector. So we will see the what will be the resultant vector. So first of all, just see this L1 star bar vector. Okay, this L1 star vector is the orbital angular momentum of first electron, and suppose this L2 star bar means star vector be the angular momentum of second electron. Okay, it will also precess. So L1 and L2 will precess around the resultant angular momentum. Okay, resultant orbital angular momentum. L1 is angular momentum of first electron, L2 is orbital angular momentum of second electron. And if we see the resultant, so before seeing the resultant, you know that the L2 is also precessing and it forms a cone. तो जो भी वेक्टर प्रिसेस करता है रिजल्टेंट मोमेंटम के अराउंड, तो आप लोगों को पता है कि वो प्रिसेस किस शेप में करते हैं, कोन के शेप में, राइट. इट विल प्रिसेस इन द शेप ऑफ कोन. तो सपोज L2 इज फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ कोन, L2 is forming this kind of cone. Again I am going to show the animation. L1 is precess and form this type of green cone. L2 will precess and it forms this type of pink cone. Okay, so but about what they will precess? They will precess around resultant orbital angular momentum. So what is the resultant direction? If suppose, see my mouse arrow, if suppose this is the L1 star vector, this is the L2 star vector, and resultant will be in the middle. Suppose this is the resultant vector, that is capital L star. So this is the resultant angular momentum.
this is the angular momentum of first electron, this is the angular momentum of orbital angular momentum of second electron, and the resultant will be in between that, and around this resultant vector L2 will be precessed, and also around this L vector, this is blue vector, L1 also precessed in this shape. So green cone is associated with L1 star vector, and this pink cone is associated with L2 star vector, okay, and the resultant vector is in between them, and resultant will be L star, capital L star. This is the resultant orbital angular momentum. तो दो इलेक्ट्रॉन है तो दो एंगुलर मोमेंटम, ओके, दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? L स्टार, कैपिटल L स्टार. और ये कैपिटल L स्टार विल ऑल्सो फॉर्म अ कोन, ओके, दिस काइंड ऑफ कोन, we'll see later on this kind of one. तो ये हो गया, हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का L1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का L2 और रिजल्टेंट का कैपिटल L. सिमिलरली दोज टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन्स. दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्पिन भी होंगे. तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने स्पिन बोल दिया S1 स्टार, दूसरे को हम बोल दे S2 स्टार. तो सपोज व्हाट इज द डायरेक्शन? Okay, suppose this is the atom, inside that two electrons are present, because we are considering the case of two valence electron. Okay, one valence electron have orbital angular momentum L1 star, second electron having orbital angular momentum L2 star, and resultant will be capital L. Similarly, those two valence electrons have spins. Okay, so first electrons have spin S1 star bar, second electron have spin S2 star bar. Okay, so S1 is the spin of first electron and S2 star will be the spin of second electron. तो spin का भी resultant होगा. तो which is the direction of resultant? In between them. Okay, suppose this is the resultant direction of spin, so it also form a cone, this yellow cone. So this yellow cone is related to, because S1 and S2 will precess about this रिजल्टेंट एस स्टार, कैपिटल एस स्टार. तो S1 और S2 किसके आजू बाजू घूमेंगे? एस स्टार के आजू, कैपिटल एस स्टार के आजू बाजू. L1 और L2 किसके आजू बाजू घूमेंगे? कैपिटल L स्टार के आजू बाजू. दैट इज द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो इस डायग्राम से हमको क्लियर ये हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन है तो दो स्पिन है, ओके, और दो स्पिन का रिजल्टेंट है कैपिटल S, दो स्पिन है S1 S2, उसका रिजल्टेंट है कैपिटल S. इस डायग्राम से हमको क्लियर हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन है तो दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और दोनों का रिजल्टेंट है कैपिटल L. ओके, तो एक बना कैपिटल L रिजल्टेंट, दूसरा बना कैपिटल S. और यू नो दैट LS कपलिंग किसको बोलते हैं? रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फिर से कपल्ड होंगे और फिर फॉर्म होगा रिजल्टेंट J. आपको पता है कि J फॉर्म होता है, J इज नथिंग बट L प्लस S. तो L प्लस S मतलब रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L, resultant angular momentum capital S will combine to form a capital J. तो कैसा फॉर्म होगा ये देखेंगे. ये देखो कैपिटल J, दिस विल बी द कैपिटल J. तो रिजल्ट L और S का रिजल्टेंट होगा कैपिटल J. तो कैपिटल J बनने के पहले कैपिटल L बनेगा और कैपिटल S बनेगा. कैपिटल L किससे बनेगा? L1 प्लस L2, दैट विल बी कैपिटल L. कैपिटल S कैसे बनेगा? S1 प्लस S2, दैट विल बी द कैपिटल S, एंड देयर आफ्टर कैपिटल L एंड कैपिटल S विल कंबाइन टू फॉर्म कैपिटल J. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ LS कपलिंग इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, these are the steps. Okay, I have spoken orally, then we will write on the slide. Okay, so again I am repeating that the atom is having two valence electrons, because we have to consider two valence electron. One valence electron having orbital angular momentum L1, one valence electron having spin angular momentum S1, second valence electron having orbital angular momentum L2, second electron having spin angular momentum S2. Okay, then L1 and L2 combine to form resultant capital L. Okay, it forms a cone. Okay, this green cone is associated with L1, this pink cone is associated with L2. Okay, and the resultant vector will be this blue vector, that is capital L. Similarly, S1 S2 are the yellow vector, and this resultant big vector is resultant S. So understood this diagram? Okay, this is very simple diagram. Okay, thereafter after this lecture I will share the slides. You just draw this, you will just draw this diagram.
onto your notebook afterwards, okay, for the practice. So जो भी मैंने अभी बोला, अब रिजल्टेंट जे जो फॉर्म करेगा वो रिजल्टेंट जे भी क्या फॉर्म करेगा, कोन. तो ये जो बड़ा वाला कोन दिख रहा है दैट विल बी द कोन ऑफ रिजल्टेंट जे. ओके, समझ लो. फिर से एक बार एनिमेशन. आई एम शोइंग दैट दिस इज L1 वेक्टर correspond to first electron, okay, corresponding to first electron. This is L2 corresponding to second valence electron, and it forms a pink cone. L1 and L2 combine, it will form capital L, that is resultant angular orbital angular momentum. Similarly, those two electrons having spins S1 and S2 combine to form a resultant capital S and yellow cone, okay. And thereafter finally capital L and capital S will combine to form capital J, and capital J, okay, capital J will be formed by the combination of capital L and capital S. And if we see the cone of capital L's cone is this one, okay, and this capital L precesses around capital J, and also this S, capital S is also precesses around capital J. तो L और S precess करेंगे J के around. Okay, so ये डायग्राम का था explanation. Now we will see some text. So in text I have already told you that consider two electron system in which individual L1 star and L2 star. What is L1 star and L2 star? L1 star is orbital angular momentum of first valence electron, L2 star is the orbital angular momentum of second valence electron, and this L1 and L2 combine to form capital L, about which both precess. Both means L1 and L2 is precessing about capital L. तो ये जो भी डायग्राम में लिखा है वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ओके. और आप लोगों को पता है अभी रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो कैपिटल L बना है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो बना है, अगर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू 0 है तो यू नो दैट दिस 0 इज करस्पॉन्ड टू S स्टेट. इफ L इज 1 यू नो दैट इट इज करस्पॉन्ड्स टू P स्टेट. इफ L इज इक्वल टू 2 इट इज करस्पॉन्ड्स टू D स्टेट. तो L स्टार मीन्स L star is equivalent to L. This L star, capital L star, having values from 0, 1, 2, and it is related to various states, S state, P state, D state, S state, and so on. Okay. तो कैपिटल एल स्टार की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू वेरी होती है? अगर हम लोगों को स्मॉल एल पता है, स्मॉल L1, इफ यू नो स्मॉल L1, इफ यू नो स्मॉल L2, then the capital L star varies from L1 minus L2 to L1 plus S2. तो capital L star varies from L1 minus L2 to L1 plus L2. What is L1? L1 is the orbital angular momentum of first electron. What is L2? Orbital angular momentum of second electron. Similarly here also. तो या तो L1 minus L2 से L1 plus L2 तक वैरी करेगा L star. L star means resultant angular orbital angular momentum. सिमिलरली तो ये तो हो गया, हम एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है. ओके, वन इलेक्ट्रॉन पसेस बोथ ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्लियर लेक्चर्स. ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है, और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है. सो वी आर कंसिडरिंग अगेन टू इलेक्ट्रॉन्स, these two individual electrons having spins. S1 star is the spin of first valence electron, S2 star is the spin of second valence electron. Okay, so this S1 and S2 again combine to form capital S. ये पता है कि S1 and S2 again combine to form capital S. Capital S star is nothing but S1 star plus S2 star. Okay, लेकिन स्पिन के वैल्यू कितने होते हैं आप लोगों को पता है? स्पिन की वैल्यू होती कितनी है? स्पिन की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, राइट. तो स्पिन की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो स्पिन की, इफ वी सी ओनली द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ स्पिन इज हाफ ओनली. सो S1 स्टार एंड S2 स्टार कैन बी टेकन द वैल्यू ऑफ हाफ. S1 स्टार एंड S2 स्टार विल possess द वैल्यू ऑफ ओनली हाफ. तो S1 स्टार हो सकता है हाफ और S2 स्टार भी हो सकता है हाफ और स्पिन के वैल्यू हाफ ही होते हैं. ओके, और मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ओनली हाफ वैल्यू इज देयर फॉर स्पिन. तो S1 star is the spin of first valence electron, S2 star is the spin of second valence electron. और कैपिटल S क्या होता है? कैपिटल S star is nothing but S1 star plus S2 star. तो दोनों को कंबाइन करेंगे. S1 star plus S2 star क्या होगा? हाफ प्लस हाफ 1.
तो एस स्टार की वैल्यू एक 1 हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एस स्टार इज नथिंग बट S1 स्टार माइनस S2 स्टार, तो माइनस करेंगे हाफ माइनस हाफ 0। तो कैपिटल एस स्टार जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है रिजल्टेंट, उसके दो वैल्यूज होते हैं, एक तो 1 या फिर 0, दो ही वैल्यू हो सकते हैं 1 या 0। अगर प्लस होगा तो हाफ प्लस हाफ 1, अगर माइनस होगा तो हाफ माइनस हाफ 0। तो कैपिटल एस स्टार मीन्स रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के दो ही वैल्यूज होंगे, एक वैल्यू होगा 1 और दूसरा वैल्यू होगा 0। अब एस स्टार का वैल्यू अगर 1 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी जाएंगी, मल्टीप्लिसिटी यू नो द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज ट्वाइस एस प्लस 1। तो यहाँ हम स्टार कंसिडर कर रहे हैं इसलिए ट्वाइस स्टार प्लस 1। अब स्टार की एस स्टार की जगह 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1 3, तो मल्टीप्लिसिटी आएगी 3 मतलब ट्रिपलेट। अगर एस स्टार की जगह मैंने 0 रखा, क्योंकि एस स्टार की दो वैल्यूज है, एक एस स्टार की वैल्यू है 1, एक एस स्टार की वैल्यू है 0। तो एस स्टार की जगह अगर मैंने 1 रखा तो वैल्यू मुझे मल्टीप्लिसिटी की कितनी मिलेगी, ट्वाइस एस स्टार प्लस 1। एस स्टार की जगह 1 रखूंगा 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 3, दैट इज नथिंग बट ट्रिपलेट। अब एस स्टार की जगह 0 रखो, तो 0 रखूंगा तो दिस टर्म विल वैनिश एंड विल गेट ओनली वैल्यू ऑफ 1, दैट इज नथिंग बट सिंगलेट स्टेट। तो एस स्टार के दो वैल्यूज है, एस स्टार के 1 वैल्यू करस्पॉन्ड टू ट्रिपलेट स्टेट, एस स्टार की दूसरी 0 वैल्यू करस्पॉन्ड टू सिंगलेट स्टेट। तो दो स्टेट्स मिलेंगे, एक तो बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट और एक को बोलेंगे सिंगलेट स्टेट। मल्टीप्लिसिटी की वजह से ट्रिपलेट स्टेट एंड सिंगलेट स्टेट, विल गेट ट्रिपलेट स्टेट एंड विल गेट सेकेंड वन सिंगलेट स्टेट। आगे देखते हैं फिर। ओके ये हमको पता है कि फाइनली क्या होगा, जस्ट लुक स्टार्टिंग में स्मॉल L1 इज कंबाइन विद द स्मॉल L2 स्टार, विल गेट कैपिटल L स्टार। स्मॉल S1 स्टार कंबाइन विद स्मॉल S2 स्टार, विल गेट कैपिटल S स्टार, एंड फाइनली capital L star and capital S star will combine to get capital J star. So resultant L star and S star weakly coupled, but they are not strongly coupled. They will weakly coupled, but they form capital J star. That is nothing but total angular momentum. Spin resultant angular or resultant orbital angular momentum, resultant spin angular momentum. They are weakly coupled to form resultant टोटल एंगुलर मोमेंटम। और जो एल स्टार और कैपिटल एस स्टार जो दोनों रहेंगे वो दैट दे विल प्रिसेस अबाउट जे, वो प्रिसेस अबाउट करेंगे किसके, जे के। प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, देखो इस डायग्राम से क्लियर होगा, इस डायग्राम से क्लियर होगा। L1 L2 स्टार कंबाइन होके कैपिटल एल, S1 S2 कंबाइन होके कैपिटल एस, एंड कैपिटल एस एंड कैपिटल एल स्टार विल कंबाइन टू फॉर्म कैपिटल जे। यही बोल रहा है स्लाइड में, और कुछ नहीं ज़्यादा लिखा है। Only they are saying L star and S star weakly coupled to form capital J, and about which both precess, both means both L and S will precess about J. Okay, now and we will see, we will know this formula. This is very well known formula. J is equal to small j plus 1, that is H cross. Okay, तो total angular momentum क्या होता है, j plus 1 H star, और small j क्या होता है, small l plus small s, that is small j. What about the H cross? H cross is nothing but H by 2 pi. तो ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेल नोन फॉर्मूला। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अभी तक हमने जो सीखा इस लेक्चर में, हमने जो पढ़ा, वी हैव लर्न दैट दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम है, कंबाइन होकर रिजल्टेंट बनाएंगे, दो डिफरेंट स्पिन है, कंबाइन होकर रिजल्टेंट एस बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट एल और रिजल्टेंट एस कंबाइन होकर रिजल्टेंट जे बनाएंगे, और रिजल्टेंट जे की वैल्यू होंगी √j j plus 1 H क्रॉस। इसके बाद एक सेंटेंस आई एम कोटिंग दैट, एंड दैट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द LS कपलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच मल्टीपल टर्म बीइंग कलेक्शन ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय J वैल्यूज। तो LS कपलिंग के वजह से हमको क्या वैल्यूज मिलेंगे, J वैल्यूज मिलेंगे, स्मॉल j। जितने ज़्यादा स्मॉल j वैल्यूज होंगे उतनी ज़्यादा लाइन्स मिलेंगी हमको, दैट विल गिव द मल्टीपल टर्म्स एंड मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल फाइन स्ट्रक्चर। तो दिस मल्टीपल, वी नो दैट द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. Okay, if suppose I keep an atom in magnetic field, the spectral line will be splitted down. Okay, if we'll keep this atom in electric field, the spectral line will be splitted. So that is nothing but the hyperfine splitting. Okay, तो ये LS coupling is responsible for each multiple. तो इस LS coupling के कारण हमको different J values मिलेंगे small j, और जितने ज़्यादा J values मिलेंगे small j, that correspond to each line splitting. Okay, now we'll see हाउ। अभी हम जो एक क्वेश्चन था हमारा, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन दैट आई हैव कोटेड इन द फर्स्ट स्लाइड, यू नो दैट
एक्सप्लेन एलएस कपलिंग इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम टू फॉर डीपी और पीडी कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का लो, एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का लो। तो एक एग्जांपल लेंगे हम, सेम एग्जांपल विल टेक द एग्जांपल फॉर डीपी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखेंगे फॉर एग्जांपल पीडी और डीपी कॉन्फ़िगरेशन। सो पीडी और डीपी कॉन्फ़िगरेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। तो व्हाट विल हैपन, सपोज वो एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, तो पी ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 होता है, यू नो दैट। स्मॉल एल इक्वल टू 1, स्मॉल एल इक्वल टू 0 मतलब एस ऑर्बिटल, स्मॉल एल इक्वल टू 1 मीन्स पी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू 2 मीन्स डी ऑर्बिटल। सो सपोज फॉर पीडी कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर डीपी कॉन्फ़िगरेशन, वन इलेक्ट्रॉन इज सपोज, बिकॉज वी आर स्टडिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इफ वी आर स्टडिंग इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मीन्स देयर शुड बी टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, पी ऑर्बिटल में, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, डी ऑर्बिटल में। अगर एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल कितना होता है, 1। तो वी आर कंसिडरिंग दैट L1 इज इक्वल टू 1। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। सो वी आर कंसिडरिंग दैट फॉर डी ऑर्बिटल L2 इक्वल टू 2। सो पी ऑर्बिटल के लिए L1 1 हो गया, डी ऑर्बिटल के लिए L2 2 हो गया। नाउ विल सी नेक्स्ट। और अपने को हमको पता है कि हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था कि L के वैल्यूज़, कैपिटल L के वैल्यूज़ वैरीज होते हैं L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। सो L1 का वैल्यू मुझे पता है 1 है पी ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पीडी कॉन्फ़िगरेशन मींस डीपी कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इन पी ऑर्बिटल, so for p orbital L is 1, so L1 we are considering L1 equal to 1. for d orbital L is equal to 2, we are considering L2 equal to 2. अब हम निकालेंगे कैपिटल कैपिटल L, you know that L1 plus capital L varies from L1 minus L2 to L1 plus L2. so capital L is nothing but L1 minus L2 to L1 plus L2. तो L1 है 1 और L2 है 2, तो 1 minus 2 minus 2, बट मैग्नीट्यूड है तो 1 आएगा। L1 है 1 और L2 है 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। ये कहाँ से आया 3, ये देखो अभी मैंने बताया कि L1 1 है, L2 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अगर L1 माइनस L2 किए तो 1 आएगा, L1 प्लस L2 किए तो 1 प्लस 2 3 आएगा। तो वही किया है मैंने, जस्ट लुक एट दिस, L इज इक्वल टू L1 माइनस L2 इक्वल टू 1 टू L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इक्वल टू 3। तो L1 माइनस L2 इज 1, तो L के मुझे दो वैल्यूज़ मिले, मतलब दो वैल्यूज़ मिले, L की वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 3। तो L की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ वेरी होंगे, L1 माइनस L2 मीन्स 1, L1 प्लस L2 मीन्स 3। सो द वैल्यू ऑफ L इज वैरीज फ्रॉम 1 to 3। तो 1 से लेके 3 तक वेरी होंगे। तो 1 से लेके 3 तक कितने वैल्यूज़ आते हैं, 1 2 3, तो 3 वैल्यूज़। सो L के वैल्यूज़ होंगे 3 वैल्यूज़, L के वैल्यूज़ रहेंगे, यस, मैग्नीट्यूड मॉड दिख रहा ना, मॉड, यू आर सीइंग दैट इज मॉड, हाँ, दिस मॉड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। सो L1 माइनस L2 इज माइनस 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग दिस, गॉट इट, ओके। सो L1 माइनस L2 इज 1 टू L1 प्लस L2 इज 3। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल एस वैरीज फ्रॉम 1 to 3। तो 1 to 3 वैल्यूज होंगे, मतलब 1 से 3 के बीच में कौन से वैल्यूज रहेंगे, 3, 1 2 एंड 3। तो कैपिटल L हैविंग वैल्यूज 1 2 एंड 3, very easy. So capital L varies from this one. Okay, some problem is there, 1 minute. So capital L जो है, तो capital L के वैल्यूज हमारे पास रहेंगे 3, that is L1, that is 1 2 and 3, because it is varies from 1 to 3. तो अब देखो नेक्स्ट, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये तो हो गया कैपिटल L के बारे में, अभी कैपिटल S कितने होंगे, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ, दूसरे भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ कंसिडर, मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हाफ। तो S1 इज हाफ एंड S2 इज हाफ, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऑर्बिटल में एक डी ऑर्बिटल, तो दोनों की स्पिन अप ही होंगी, इसलिए हमने हाफ हाफ कंसिडर किया। तो S1 इज हाफ एंड S2 इज हाफ। सो S इज वैरीज फ्रॉम S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, तो दो ही वैल्यूज होंगे। तो S1 माइनस S2, हाफ माइनस हाफ 0, S1 प्लस S2, हाफ प्लस हाफ 1। तो कैपिटल S जो रहेगा, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो मतलब दो वैल्यूज होंगे, 0 एंड 1। तो अभी हमको कैपिटल L के वैल्यूज मिल गए 1 2 3, कैपिटल S के वैल्यूज मिल गए 0 और 1। कैपिटल S कहाँ से आया, S1 प्लस S2, और S1 है हाफ, S2 है हाफ, हाफ प्लस हाफ
1 होता है अगर प्लस कंसिडर किए, माइनस कंसिडर किए तो हाफ माइनस हाफ 0 होता है। तो अभी हमको कैपिटल एल के वैल्यू मिल गए 1 2 3, कैपिटल एस के वैल्यू मिल गए 0 और 1। तो अभी हम मल्टीपल टर्म्स देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि फॉर ओनली विल कंसिडर वन केस एस इक्वल टू 0, और जब एस इक्वल टू 0 होता है तो तुमको पता है मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मल्टीप्लिसिटी है ट्वाइस एस प्लस 1। अगर एस की जगह 0 रखूंगा तो मल्टीप्लिसिटी होगी 1, 1 मतलब सिंगल स्टेट। So just look at, so first we will consider the case of s is equal to 0. If suppose s is equal to 0, twice s plus 1 is 1, तो s की जगह 0 रखो तो 1 आएगा। 1 is nothing but the singlet state, that is nothing but singlet state। तो इस singlet state के लिए तुमको पता है कि l के 3 वैल्यूज है, तो ये सबसे पहले हम सिंगलेट स्टेट कंसीडर करेंगे। व्हेन s इक्वल टू 0, ट्वाइस s प्लस 1 इज 1, s 0 रखा तो 1 आएगा, दैट इज सिंगलेट स्टेट। और सिंगलेट स्टेट के लिए तुमको लोग पता है कि l के 3 वैल्यूज है जो हमको मिल चुका है। तो l के 3 वैल्यूज मतलब l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3। अब l के 3 वैल्यूज है तो j के भी 3 वैल्यूज रहेंगे, कैपिटल j। व्हाट अबाउट द कैपिटल j? कैपिटल j इज कैपिटल L प्लस कैपिटल S। तो कैपिटल S कितना है 0, हम सिर्फ 0 का केस कंसिडर कर रहे हैं। तो कैपिटल S, जस्ट लुक एट माई माउस एरो, दिस टेक्स्ट इन वाइट कलर कोटेड S इक्वल टू 0। तो कैपिटल S इक्वल टू 0 और कैपिटल L इक्वल टू 1, तो J कितना होगा 0 प्लस 1 1। तो L इक्वल टू 1 के लिए होगा J 1। अब L इक्वल टू 2 के लिए J कितना होगा, तो कैपिटल S कितना है 0 अगेन, एंड कैपिटल L के लिए 2, तो 2 प्लस 0 2, तो J होगा 2। कैपिटल L इक्वल टू 2 के लिए J होगा 2। अब कैपिटल L इक्वल टू 3 के लिए J कितना होगा, तुमको पता है J क्या है, L प्लस S, तो L है 3 और S है अगेन 0, तो 3 प्लस 0 3, तो J के वैल्यूज होंगे 3 वैल्यूज होंगे J के, एक 1 2 एंड 3, क्योंकि L के 3 वैल्यूज हैं, S का भले एक ही वैल्यू है, ओके, S हैविंग ओनली 1 वैल्यू बट L इज हैविंग 3 वैल्यूज, सो J विल हैव 3 वैल्यूज बिकॉज J इज इक्वल टू L प्लस S। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 अगेन 3, तो J के 3 वैल्यूज है 1 2 3, L के 3 वैल्यूज है L 1 2 3, और S का एक ही वैल्यू है, मल्टीप्लिसिटी का भी एक ही वैल्यू है, दैट इज 2s प्लस 1 इज नथिंग बट 1। तो लेकिन इसमें हमको टर्म्स कितने मिलेंगे, 3 टर्म्स। टर्म तुमको पता है कि टर्म वैल्यूज किसको बोलते हैं, एक कैपिटल लेटर हम स्टेट डिनोट करते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है ट्वाइस s प्लस 1 और नीचे लिखा रहता है J, दैट इज नथिंग बट टर्म वैल्यूज। हम पढ़ चुके हैं टर्म वैल्यूज क्या होते हैं। कोई भी एक कैपिटल स्टेट, जैसे S टर्म स्टेट बोलूंगा तो कैपिटल S, या कैपिटल D को मैंने टर्म स्टेट बोला तो कैपिटल D, ऊपर एक नंबर लिखा रहेगा, दैट नंबर इज नथिंग बट मल्टीप्लिसिटी ट्वाइस s प्लस 1, नीचे एक नंबर लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड J, कैपिटल J, ओके। तो इसको बोलते हैं टर्म वैल्यूज। अभी ये जो 3 L के वैल्यूज है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 J के वैल्यूज है, तो उसके लिए भी 3 डिफरेंट टर्म्स होंगे। और तुमको पता है L इक्वल टू 1 मीन्स कौन सा टर्म, L इक्वल टू 1 मीन्स विच टर्म, P टर्म, D टर्म, F टर्म की क्या, L इक्वल टू 1 के लिए P टर्म, राइट। L इक्वल टू 0 के लिए S टर्म, तो L इक्वल टू 1 के लिए P टर्म, L इक्वल टू 2 के लिए D टर्म, L इक्वल टू 3 के लिए F टर्म, राइट। तो इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग L इक्वल टू 1 के लिए है P टर्म, नीचे मैंने 1 लिखा क्योंकि J कितना है 1 और मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, इसलिए ऊपर 1 लिखा, P1 1 ऐसा आएगा। अब L इक्वल टू 2 के लिए D टर्म, नीचे 2 लिखा क्योंकि J कितना है 2, नीचे की वैल्यू मतलब J, ऊपर की वैल्यू मतलब मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी मतलब ट्वाइस s प्लस 1, 1 है सिंगलेट स्टेट, इसलिए सबके ऊपर 1 1 लिखा है क्योंकि हम सिंगलेट स्टेट की बात कर रहे हैं और मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो J इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1 को करस्पॉन्डिंग P टर्म, J इक्वल टू 1 है इसलिए नीचे 1 लिखा, J इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 को करस्पॉन्डिंग D टर्म, J इक्वल टू 2 इसलिए 2 लिखा और ऊपर 1 ही लिखा क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 1 है। उसी तरीके से J इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 3 के लिए F टर्म, नीचे J की वैल्यू 3 रहती है इसलिए 3 रखा, J की वैल्यू 3 है और 1 ऊपर रखा, दैट इज मल्टीप्लिसिटी इज 1। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ PD कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिंगलेट स्टेट। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, जो क्वेश्चन में पूछा था कि LS कपलिंग एक्सप्लेन करो PD कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो PD कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन P में है कंसिडर किए, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने D में है कंसिडर किया, कैपिटल L निकाला, कैपिटल S निकाला, कैपिटल J निकाल के टर्म वैल्यूज निकाले। ये एग्जांपल हमने PD कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंगलेट स्टेट के लिए किया, ये सिंगलेट स्टेट के लिए। लेकिन जब ट्रिपलेट स्टेट होगा तो क्या होगा, ये सिंगलेट स्टेट मतलब L इक्वल टू 1 के लिए करस्पॉन्डिंग एक ही टर्म है, L इक्वल टू 2 के लिए करस्पॉन्डिंग एक ही टर्म है,
L इक्वल टू 3 के लिए करस्पॉन्डिंग एक ही टर्म है, तो हर L के लिए एक ही टर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। लेकिन जब आप लोग ट्रिपलेट स्टेट के लिए एग्जाम्पल करोगे तो हर L के लिए 3 टर्म्स होंगे, हर L के लिए 3 टर्म्स, सो दैट्स वाई 3 ट्रिपलेट, एंड ट्रिपलेट मीन्स द लाइन विल बी स्प्लिटेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे, कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे ट्रिपलेट स्टेट में। तो ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा वो देखेंगे। ओके, ट्रिपलेट स्टेट के लिए हमको S क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कैपिटल S 1। तो जब कैपिटल S 1 होगा तो कैपिटल S की जगह जब 1 रखेंगे तो 2 + 1 3, दैट इज नथिंग बट ट्रिपलेट स्टेट। तो अभी देखेंगे ट्रिपलेट स्टेट के लिए, ठीक है। सो दिस सपोज दिस फॉर S इज इक्वल टू 1, ट्वाइस S1 प्लस twice S plus 1 is equal to 3, तो S is equal to 1, 2 + 1 is 3, and that is nothing but the triplet state। अब ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा, वैल्यू तो L के 3 ही रहेंगे, वैल्यू तो L के 3 ही रहेंगे, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3, वैल्यू तो L के 3 ही रहेंगे, 1 2 3, लेकिन वैल्यू अभी J के बदल जाएंगे, J के वैल्यूज 1 नहीं रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पे क्या था, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या था, S0 था, तो L प्लस S सीधा S0 है तो सब का सब L पे ही डिपेंड था, ठीक है। तो L प्लस S 0 या फिर L माइनस S भी वैसे ही सेम वैल्यूज आते, तो इसलिए एक एक ही वैल्यू आई J की, क्योंकि S 0 था तो सारा का सारा L पे डिपेंड था। लेकिन जब S 0 नहीं रहेगा, व्हेन S इज इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1 2 3, तो J के भी 3 वैल्यूज आएंगे। कैसे, तो J के वैल्यूज आप लोगों को पता है कि J के वैल्यूज क्या होते हैं, L माइनस S टू L प्लस S। J के वैल्यूज इज वेरीज फ्रॉम L माइनस S टू L प्लस S। तो J के वैल्यूज इसमें कितना होगा, देखो यहाँ पे S है 1 और L है 1, ठीक है। तो 1 J के वैल्यूज क्या होंगे, L माइनस S, 1 माइनस 1 0, और L प्लस S 1 + 1 2, तो फ्रॉम 0 to 2। तो इस केस के लिए L इक्वल टू 1 के लिए J के वैल्यूज क्या होंगे, 0 to 2, बाय बिकॉज द वैल्यू ऑफ J इज वेरीज फ्रॉम L माइनस S टू L प्लस S। तो L माइनस S मतलब 1 माइनस 1 0, L प्लस S मतलब 1 + 1 2, तो 0 to 2, तो 0 to 2 के बीच में कितने वैल्यूज होते हैं, 0 1 and 2। सो L इक्वल टू 1 के लिए हमको J के 3 वैल्यूज मिलेंगे, 0 1 and 2। अब L इक्वल टू 2 के लिए कितने वैल्यूज मिलेंगे, L इक्वल टू 2 के लिए कितने वैल्यूज मिलेंगे, बिकॉज S इक्वल टू 1 है और L इक्वल टू 2 है, तो L प्लस S और L माइनस S, L माइनस S 2 माइनस 1 1, L प्लस S 2 + 1 3, तो 1 to 3 1 से लेके 3 तक वैल्यूज मिलेंगे। तो 1 से लेके 3 तक क्या आएगा, 1 2 and 3, तो J के हमको फिर 3 वैल्यूज मिलेंगे, 1 2 and 3। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये अगर नहीं समझा तो फिर से बता रहा हूँ, S 1 होने के कारण सारा का सारा L पे डिपेंड नहीं रहेंगे वैल्यूज J के, तो L 1 होने के कारण J के वैल्यूज वैरी करेंगे, L माइनस S टू L प्लस S। तो L माइनस S मतलब 1 माइनस 1 0, L प्लस S मतलब 1 + 1 2, तो 0 to 2 वैल्यूज वैरीज करेंगे L इक्वल टू 1 के लिए। तो 0 to 2 के बीच में 3 वैल्यूज आते हैं, 0 1 and 2। सिमिलरली इफ सपोज L इक्वल टू 2 एंड S इक्वल टू 1, तो L माइनस S कितना होगा, 2 माइनस 1 1, L प्लस S कितना हो गया, 2 + 1 3, तो 1 से लेके 3 तक वैरी करेंगे वैल्यूज, तो 1 2 and 3, तो J के वैल्यूज होंगे फिर 3। सिमिलरली L इक्वल टू 3 है और S इक्वल टू 1 है, तो L माइनस S कितना हो गया, 3 माइनस 1 2, L प्लस S कितना हो गया, 3 + 1 4, तो 2 to 4 वैल्यूज रहे, 2 to 4 वैल्यूज वैरी करेंगे, 2 to 4 मतलब 2 3 and 4, तो J के 3 वैल्यूज। तो अभी L इक्वल टू 1 के लिए J के वैल्यूज रहेंगे 0 1 2, L इक्वल टू 2 के लिए J के वैल्यूज रहेंगे 1 2 3, L इक्वल टू 3 के लिए J के वैल्यूज रहेंगे 2 3 4। तो J के वैल्यू अगर 3 है तो टर्म्स भी हमारे 3 होंगे, तो L इक्वल टू 1 को करस्पॉन्डिंग टर्म्स 3, L इक्वल टू 2 को करस्पॉन्डिंग टर्म्स 3, L इक्वल टू 3 को करस्पॉन्डिंग टर्म्स 3 होंगे। तो कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, तो L इक्वल टू 1 के लिए P टर्म, हमको पता है L इक्वल टू 1 मीन्स P स्टेट, तो P टर्म होंगे। तो टर्म कौन कौन से होंगे, P टर्म, P P P 3 टर्म्स होंगे, क्यों, क्योंकि J की वैल्यू 0, पहले J की वैल्यू 0, फिर J की वैल्यू 1, फिर J की वैल्यू 2, और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, तो ऊपर का कुछ भी डिजिट चेंज नहीं होगा, नीचे के डिजिट 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, बिकॉज J इक्वल टू पहले इसमें 0 है, दूसरे इसमें 1 है, तीसरे इसमें 2 है, तो J के वैल्यूज वैरी होंगे, इसलिए टर्म वैल्यूज भी 3 होंगे फॉर L इक्वल टू 1 फॉर ट्रिपलेट स्टेट, सो फॉर ट्रिपलेट स्टेट 3 term values, we will get 3 term values, 3p0 3p1 3p2। similarly for triplet state for L equal to 2 again we will get 3 terms। L equal to 2 means क्या होता है, D state, कैपिटल D state,
तो 3 टर्म्स, क्योंकि जे के भी 3 वैल्यूज है 1 2 3, तो जे के वैल्यू इधर रख दो, और ट्रिपलेट स्टेट मीन्स मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है 3. सो अगेन वी विल गेट 3 टर्म्स करस्पॉन्ड टू एल इक्वल टू 2, बिकॉज जे के 3 वैल्यूज है इसलिए 3 टर्म मिलेंगे, राइट. And you know that L equal to 3, corresponding L equal to 3, that is F state, capital F state. So again we will get 3 term values for L correspond to L equal to 3. Again J के वैल्यू क्या है 2, J के यहाँ पे 3 चाहिए, so मिस्टेक हुआ है यहाँ पे. ओके, here is 3 and there is 4, here is 4 and here is 3. okay, because J के वैल्यूज क्या है 2 3 एंड 4, इस तरीके से. तो L इक्वल टू 3 के लिए भी हमको 3 टर्म्स मिलेंगे, 3f2 3f3 3f4, 2 3 4 आर J वैल्यूज. तो J के जितने वैल्यूज होंगे उतने टर्म वैल्यूज हमको मिलेंगे. तो ट्रिपलेट स्टेट में जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इन ट्रिपलेट स्टेट वी विल गेट 3 टर्म्स corresponds to each L. and in singlet state, previously in previous slide, in for singlet state we will get only one term value correspond to each capital L. So this is the example of PD configuration for LS coupling. So in today we have seen the LS coupling in 2 valence electron system, and this is very important. We have seen this vector diagram, as well as we have seen complete example and complete derivation related to that. Okay, and we have considered the example of PD configuration, and in PD configuration we have seen term values for singlet and triplet state. So today this is the completion of this topic, LS coupling in 2 valence electron atom, and in next lecture we will see JJ coupling. That question is also important. Okay, in next lecture we will say JJ